welcome to Grade 10 Economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is sectors of the Indian economy, and today's session will be session number 3. So in this session we are going to compare the three sectors. जो हम लोगों ने तीन sectors के बारे में बात करी, which was primary sector, जो secondary sector है, and also tertiary sector. तो इन तीनों sectors को हम लोग compare करके इस जो session में है उसमें हम लोग discuss करेंगे. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. तो जो बहुत सारे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स जो होते हैं या सर्विसेज होती हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं. तो ये तीनों सेक्टर जो हैं वो एक्चुअली मिल के काम करते हैं, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड थिंग्स आर एक्चुअली हम लोगों के पास व्हेन वी गेट द प्रोडक्ट जो सेल होते हैं मार्केट में, तो ऑल थ्री सेक्टर्स वर्क टुगेदर फॉर इट. The three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. So all these three sectors जो primary, secondary and tertiary sector है, उनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं. A lot of people work in them, जिसकी वजह से all these activities are possible. जो agriculture activity है and also manufacturing activity, and then the service sectors जो हैं. All these are possible because people are working in them, and a lot of people are working for all these sectors. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. तो जो next step है वो ये है कि कितना जो goods and services हैं वो produce होता है, and जो कितने सारे लोग हैं each sector में, how many people work in each sector. So it's a division कि how many people are working, जितने ज़रूरत है agriculture में, those many people we work in agriculture. This is how people are divided कि कुछ लोग work in service sector, and some people they are working in manufacturing units, they study for that. So this is how everybody is divided, and that's how all the three sectors are working. How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? तो किस तरीके से हम total जो production है वो अलग अलग sector में कैसे हम लोग उसकी value place करते हैं, this we are going to discuss now. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. तो so many thousands of goods and services जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड ऐसा लगता होगा कि ये जो है इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क. इफ़ यू एक्चुअली आप लोग बैठ के अगर सोचे तो कितने सारे कार्स हैं, कितना सारा फर्नीचर है, अगर आप देखें कितना गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसका प्रोडक्शन है वो होता है. ये जो टास्क है, नॉट ओनली इट वुड बी इनॉर्मस जो ये टास्क है, वन वुड ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन ऐड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर. किस तरीके से भी ऐड अप वैल्यू भी इन सब की कैसे ऐड अप की जाती है, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर सो डिफरेंट. ये सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, फ्रॉम नेल टू एन एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड. तो किस तरीके से ये सब बनाया जाता है, हाउ मेनी पीपल वर्क फॉर दैट. Economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. तो economists ये suggest करते हैं कि value of जो goods and services हैं उनको add up करना चाहिए, rather than जो actual numbers हैं उनको add up करें. For example, if 10,000 kilos of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be rupees 80,000. तो फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि जो फाइनल जो वैल्यू है जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो वैल्यू देखनी चाहिए. तो अगर 10,000 kgs ऑफ वीट है किसी के पास, वो सेल करते हैं 8 रुपीज़ पर kg, तो उसकी जो वैल्यू होगी वीट की वो होगी 80,000 रुपीज़. The value of 5,000 coconuts as rupees 10 per piece will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. तो जो वैल्यू होगी 5,000 कोकोनट अगर हम लोग लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो लिया गया है, अगर उसको बेचा जाता है रुपीज़ 10 पर पीस, तो उनकी जो पूरी वैल्यू होगी वो होगी 50,000 रुपीज़. सो सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं
आइदर इट इज़ अ गुड और इट्स अ सर्विस। जो भी सारा जो हम लोग 3 सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो द वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की इन 3 सेक्टर्स में वो कैलकुलेट कर जाती है एंड देन ऐड अप की जाती है, जिस तरीके से वी सॉ इट इन दिस एग्जांपल। जो हमारा कोकोनट का एग्जांपल है उसमें हमने जो देखा कि जिस तरीके से वैल्यू देखी जाती है कि कैलकुलेट करें उसको कितनी वैल्यू है एंड देन ऐड अप कर सकते हैं। There is one precaution one has to take. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. So एक जो precaution है वो लेना पड़ेगा कि जो not every good और not every service जो कि produce की जाती है and जो सोल्ड की जाती है needs to be counted. वो सारी जो goods and services हैं उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है. नाउ अ फार्मर हु सेल्स wheat to a flour mill for ₹8 per kg, the mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for ₹10 per kg. तो एक जो ये एक एग्जांपल है जिससे हम समझेंगे कि जो फार्मर है हु सेल्स द wheat, जो wheat है वो सेल करते हैं फ्लावर मिल को, वो सेल करेंगे यहाँ पे जो एग्जांपल में ₹8 पर केजी वो उनको सेल करते हैं. देन जो मिल है जहाँ पे वो सेल करते हैं वो ग्राइंड करता है वीट को एंड देन वो आगे सेल करता है, वो एक बिस्किट कंपनी को सेल करता है फॉर ₹10 पर केजी. तो ही इज मेकिंग हिज प्रॉफिट, ही इज बाइंग इट एट 8 पर केजी व्हेन वो ग्राइंड करके देन ही इज सेलिंग इट एट ₹10 पर केजी. Now the biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. Now जो biscuit company है then to make a biscuit they need some other things to add, तो वो add करते हैं, उसमें sugar है and oil है, तो ये सारी चीज़ें add करते हैं वो and then they make 4 packets of जो biscuit है वो बनाते हैं. It sells biscuit in the market to the consumers for ₹60 which will be ₹15 per packet. तो वो जो 4 पैकेट वो बनाते हैं बिस्किट के, देन वो सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, जो जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं. अगर आप बच्चों मार्केट में जाएंगे खरीदने तो यू आर कंज्यूमर, तो आप बाय करते हैं वहाँ पे, वो सेल होता है ₹15 पर पैकेट. तो ऑल टुगेदर जो वैल्यू हुई उसकी वो हुई ₹60 बिकॉज उन्होंने 4 पैकेट, दे हैव मेड 4 पैकेट्स और दे सोल्ड इट एट ₹15 पर पैकेट, तो इट बिकेम ₹60 ऑल टुगेदर इफ वी सी द वैल्यू ऑफ इट. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumers. तो इसमें we understand that कि final good क्या है. Final good is the biscuits और वो good है जो consumers तक पहुँचा है. So this is the final good, the biscuit is the final good that reached the consumers. In contrast to final goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. तो in contrast to जो final good है which is जो बिस्किट के पैकेट हैं वो है हमारा final जो good है वो, और जो वीट है एंड वीट फ्लावर है यहाँ पे जो एग्जांपल हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया उसमें वीट एंड वीट फ्लावर आर द इंटरमीडिएट गुड्स. सो वो है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए यूज़ होते हैं. तो वो जैसे इसमें हम लोगों ने बिस्किट का जो एग्जांपल लिया उसमें है वीट एंड वीट फ्लावर जो है वो यूज़ हो रहा है बिस्किट को बनाने के लिए. दैट इज़ वाई वो जो वीट एंड वीट फ्लावर है दैट इज़ द इंटरमीडिएटरी गुड, एंड जो बिस्किट बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल गुड. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence, the value of ₹60 for the biscuits, which is the final good, already includes the value of flour, which is ₹10. तो now with the example जो हम लोगों ने example लिया बिस्किट का example, तो उसमें value of जो final good है which is the biscuit per packet जो था ₹15 and altogether जो 4 packets that the person sold, so ₹60 जो थे that was the final good, और उसका जो price है final good का that was ₹60. Now in that final जो price है which is ₹60, जो ₹60 का final price जो था उसमें ऑलरेडी जो वीट है वीट फ्लावर है शुगर है
उन सब की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। तो इसमें ऑलरेडी जो वीट जो वैल्यू ऑफ फ्लावर थी जो ₹10 थी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। सो दैट इज़ द फाइनल गुड, जो वैल्यू है फाइनल गुड की वो थी ₹60। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year. तो जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है, ईच एंड एवरी सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर ईयर में, पूरा जो ईयर में वो लोग प्रोड्यूस करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें जो टोटल प्रोडक्शन होता है सेक्टर का वो फॉर दैट ईयर वो इंक्लूडेड रहता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सारे जो सेक्टर की है उसमें टोटल वैल्यू इंक्लूडेड रहती है। And the sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product or the GDP of the country. And जो sum of the production in the three sectors होता है, जो all three sectors जो हम लोगों ने बात की वो कौन से थे बच्चों याद करिए, वो थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों जो सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो सर्विसेज हैं हमारे टर्शियरी सेक्टर में, वो जो सम ऑफ प्रोडक्शन होता है उन तीनों सेक्टर में फॉर द ईयर, उन तीनों जो सेक्टर्स में मिला के जो होता है उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो वो होती है जीडीपी ऑफ द कंट्री जिसमें तीनों जो सेक्टर है उनका जो प्रोडक्शन है वो तीनों मिला के जीडीपी होता है। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. तो ये वैल्यू होती है, जीडीपी जो होती है वो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करता है कोई भी कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो उस ईयर की अगर हम लोग 2017 की बात करें तो अगर 2017 में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए फ्रॉम द थ्री जो सेक्टर है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कुल मिला के जो उन लोगों ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी इन दैट पर्टिकुलर ईयर वो होगा हमारा जीडीपी। एंड जीडीपी जो है वो शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. तो इंडिया में जो ये इतना बड़ा काम है बिकॉज जीडीपी को कैलकुलेट करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, और वो जो टास्क है हमारे पास हमारे इंडिया में वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास। दे अंडरटेक दैट टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी फॉर द कंट्री। This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP. So ये जो ministry है वो हेल्प लेती है विद वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं एंड ऑल्सो द इंडियन स्टेट्स हैं जो एंड सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, सबसे इंफॉर्मेशन लेके देन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइसेस लेते हैं एंड देन वो जो जीडीपी है उसको एस्टिमेट किया जाता है बिकॉज जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द थ्री सेक्टर्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज जितने भी हैं कंट्री में, और फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट इज़ हाउ कंट्री की जो जीडीपी है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर वो निकाली जाती है। सो इन दिस सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर क्या है एंड एक कंट्री का जो जीडीपी है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर वो किस तरीके से निकाला जाता है एंड हाउ जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें किस तरीके से ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ होते हैं दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दैट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि किस तरीके से मिनिस्ट्री जो है वो जीडीपी निकालती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर फॉर दैट कंट्री। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।